کاشتکار بھائیوں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے سونا یوریا بنانے والے ادارے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی تیار کردہ فلم دھان کی کاشت پیش کر رہے ہیں۔ ایف ایف سی پاکستان میں یوریا بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ ایف ایف سی اپنے سونا یوریا پرلٹ کے ساتھ ساتھ فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ کے تیار کردہ سونا یوریا گرینولر اور سونا ڈی اے پی کی ترسیل و تقسیم کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کھادوں کے متوازن استعمال کو فروغ دینے کے لیے درآمد کردہ ایف ایف سی ڈی اے پی، ایف ایف سی ایم او پی، ایف ایف سی ایس او پی، سونا زنک اور سونا بوران کھادیں بھی مہیا کر رہی ہے۔ اس طرح فوجی فرٹیلائزر کمپنی سالانہ 39 لاکھ ٹن سے زائد کھادیں اپنے 3500 سے زائد ڈیلروں کے ذریعے پورے ملک میں کاشتکاروں تک پہنچا رہی ہے۔ ایف ایف سی اعلیٰ معیار کی کھادوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی پہنچا کر فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے 5 فارم ایڈوائزری سینٹرز کے تحت ملک بھر میں تعینات زرعی ماہرین کاشتکاروں کو زرعی توسیع، مٹی اور پانی کے مفت تجزیے کی سہولیات کے ساتھ ساتھ کھیتوں پر نمائشی پلاٹ لگا کر عملاً تربیت بھی فراہم کر رہے ہیں۔ میں ہر سال دھان کی فصل کاشت کرتا ہوں۔ پچھلے سال میں نے ایف ایف سی کے زرعی ماہرین کی بتائی گئی سفارشات کے مطابق فصل کاشت کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ اگر باقی کاشتکار بھی ایف ایف سی کے زرعی ماہرین کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کریں گے تو ان کی پیداوار میں بھی یقینی اضافہ ہوگا۔ ایف ایف سی کے زرعی ماہرین سال بھر میں فصلوں کے مختلف مراحل پر ریڈیو پاکستان اور ایف ایم چینلز پر کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے زرعی پروگرامز میں بھی شرکت کرتے ہیں اور کاشتکاروں کے مسائل کے حل تجویز کرتے ہیں۔ دھان پاکستان کی ایک اہم نقد آور فصل ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا اور زمین دھان کی فصل کے لیے بہت موزوں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک کی فی ایکڑ اوسط پیداوار کم ہے۔ مگر ہمارے بہت سے ترقی پسند کاشتکار دھان کی اوسط پیداوار سے تقریباً 2 گنا زیادہ پیداوار لے رہے ہیں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دیگر کاشتکار بھی دھان کی زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ کاشتکار بھائیوں، اب ہم آپ کو دھان کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے والے جدید زرعی عوامل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دھان کی کاشت کے لیے چکنی یا چکنی مہرا زمین کا انتخاب کریں، تاہم دھان کی فصل کلراٹھی زمینوں میں بھی کاشت کی جا سکتی ہے۔ پنیری کی کاشت کے لیے تندرست، صاف ستھرا، بیماریوں سے پاک، تصدیق شدہ اور 80% سے زائد اگاؤ والا بیج استعمال کریں۔ ملک کے مختلف علاقوں کے لیے منظور شدہ اقسام یہ ہیں: دھان میں فائن اور موٹی اقسام کے علاوہ ہائیبریڈ اقسام بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ ان اقسام کا انتخاب ایف ایف سی کے زرعی ماہر یا محکمہ زراعت کے مشورے سے کریں۔ پنیری کی کاشت عام طور پر زمین کی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے کدو، خشک یا راب کے طریقے سے کی جاتی ہے۔ آپ اپنی زمین کی مناسبت سے موزوں طریقے سے ان اوقات میں پنیری کاشت کریں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا موٹی اقسام 20 مئی سے 7 جون، فائن اقسام 7 جون سے 25 جون اور شاہین باسمتی اور کسان باسمتی 15 جون سے 30 جون تک کاشت کریں۔ بالائی سندھ میں موٹی اقسام 1 مئی سے 15 جون، زیریں سندھ 20 اپریل سے 10 جون اور بلوچستان میں 20 مئی سے 30 جون تک کاشت کریں، جبکہ ہائیبریڈ اقسام کا موزوں وقت کاشت 20 مئی سے 15 جون تک ہے۔ پنیری کی کاشت اپنے رقبے کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 سے 3 قسطوں میں کریں تاکہ منتقلی کے وقت اس کی عمر 25 سے 30 دن تک ہو۔ موٹی اور ہائیبریڈ اقسام کے لیے 1 تا 2 کلوگرام بیج فی مرلہ، جبکہ فائن اقسام کے لیے آدھے سے 1 کلوگرام بیج فی مرلے کے حساب سے کاشت کریں۔
धान की फसल को बकाइनी और पत्तों के भूरे धब्बों वाली बीमारियों से बचाने के लिए बीज को सिफारिश करदा फफूंदी कुछ जहर लगाकर काश्त करें। अगर पनीरी कद्दू के तरीके से काश्त करनी हो तो बीज को 24 घंटे के लिए सिफारिश करदा फफूंदी कुछ जहर मिले पानी में भिगो दें। इसके बाद बीज की छोटी ढेरियां बनाकर गीली बोरियों से ढांप दें। बीज को दिन में 2-3 बार हिलाकर पानी का छट्टा देते रहें ताकि बीज खुश्क ना होने पाए और गर्मी से भी महफूज रहे। इस तरह बीज 36 से 48 घंटे में अंगूरी मार लेगा। अब ये बीज काश्त के लिए तैयार है। पनीरी पर तने की सुंडी और टोके के हमले की सूरत में सिफारिश करदा दानेदार जहर का इस्तेमाल करें। अगर पनीरी कमज़ोर नज़र आए तो 1 पाव सोना यूरिया फी मरले के हिसाब से पनीरी की मुंतकली से 10 दिन पहले छट्टा करें। काश्तकार भाइयों, हमारी ज़मीनों में नामियाती मादे की कमी फसलों की पैदावार में कमी की अहम वजह है। इस कमी को दूर करने के लिए जंतर बतौर सब्ज खाद बेहतर नताइज देता है। सब्ज खाद के लिए उगाई गई जंतर की फसल को लाभ की मुंतकली से 2 हफ्ते कबल रोटावेटर की मदद से ज़मीन में दबा दें और गलने सड़ने के अमल को तेज़ करने के लिए आधी बोरी सोना यूरिया फी एकड़ के हिसाब से छट्टा करें। पनीरी की मुंतकली के लिए ज़मीन की तैयारी 3 तरीक़ों से की जाती है: कद्दू या तर तरीक़ा, जुज़वी तर तरीक़ा और खुश्क तरीक़ा। काश्तकार भाइयों, आप अपनी ज़मीन की खासियत, पानी की दस्तयाबी और मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए किसी एक तरीक़े से ज़मीन तैयार करें। 25 से 30 दिन के बाद पनीरी मुंतकली के काबिल हो जाती है। पनीरी उखाड़ने से कबल खेत को पानी लगा दें ताकि पौधों की जड़ें टूटने से महफूज रहें। पनीरी मुंतकिल करते वक्त पौधे से पौधे और कतार से कतार का फासला 9 इंच रखें। एक सुराख में 2 पौधे लगाएं। इस तरह 1 एकड़ में पौधों की मतलूबा तादाद 1,60,000 फी एकड़ हासिल हो जाएगी। आजकल पनीरी की मुंतकली के लिए मैकेनिकल प्लांटर भी दस्तयाब हैं, जिनसे पनीरी की मुंतकली बलिहाज कतार और पौधे से पौधे का यकसा फासला रखते हुए की जा सकती है। कई तरक्की पसंद काश्तकार लेबर के मसाइल के पेश नज़र और पौधों की फ़ी एकड़ मतलूबा तादाद हासिल करने के लिए इनसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। पनीरी मुंतकिल करते वक्त पानी की गहराई 1.5 इंच होनी चाहिए और फिर 25 से 30 दिन तक पानी की सतह बतदरीज 3 इंच तक बढ़ा दें। फसल के मूंजर निकलने के बाद दाने भरने तक खेत तरवतर हालत में रखें। इस तरह फसल गिरने से महफूज रहती है और पानी की बचत भी होती है। फसल के पकने से 15 से 18 दिन पहले पानी देना बंद कर दें। पानी की कमी को मद्देनज़र रखते हुए कम पानी से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए AWD ट्यूब का इस्तेमाल एक फ़ायदेमंद टेक्नोलॉजी है। इस तरीके से ज़मीन में मौजूद पानी की मिक़दार का मुशाहिदा करके आबपाशी की जाती है, जिससे पानी की बचत होती है और पैदावार में भी इजाफ़ा होता है। मुनाफा बख्श पैदावार हासिल करने के लिए खादों का मुतनासिब और बर वक्त इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की कायम करदा मिट्टी और पानी के तज्ज़िये की जदीद कंप्यूटराइज्ड लेबॉर्ट्रियों में तज्ज़िया करदा 5.5 लाख से ज़ायद नमूनों के मुताबिक हमारी तकरीबन 100% ज़मीनों में नाइट्रोजन, 92% से ज़ायद ज़मीनों में फास्फोरस और 50% से ज़ायद ज़मीनों में पोटाश की कमी वाक़ई हो चुकी है। अज्जाए सगीरा के लिए तज्ज़िया किए गए नमूनों के नताइज के मुताबिक 85% ज़मीनों में जिंक जबकि 60% ज़मीनों में बोरान की कमी है। धान की फसल में खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल के लिए आप भी अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाने के लिए करीबी सोना डीलर, FFC हेल्पलाइन 0800 00 332 या फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के करीबी ज़राई माहिर से रब्ता करें। मैं गंदम और धान की फसल काश्त करता हूँ। इस दफ़ा मैंने गंदम की फसल काश्त करने से पहले FFC की लेबॉर्ट्री से अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाया और इनकी सिफारिशात के मुताबिक खादों का इस्तेमाल किया, तो पैदावार में 12 मन फी एकड़ का इजाफा हुआ। अब मैं धान की फसल काश्त करने से पहले अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवा रहा हूँ ताकि FFC की सिफारिशात के मुताबिक खादों का मुतवाज़न और मुतनासिब इस्तेमाल करके भरपूर पैदावार हासिल कर सकूँ। अगर आपने अपनी ज़मीन का तज्ज़िया नहीं करवाया तो खादें इस तरह डालें। धान की फ़ाइन इक़साम के लिए 1.25 बोरी सोना यूरिया, 1.5 बोरी सोना DAP, 1 बोरी FFC SOP या 1.25 बोरी FFC MOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। मोटी और हाइब्रिड इक़साम के लिए 2.25 बोरी सोना यूरिया, 1.25 बोरी सोना DAP,
सवा बोरी FFC SOP या 1 बोरी FFC MOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। धान की तमाम इकसाम में सोना DAP, FFC SOP या FFC MOP पनीरी की मुंतकली से पहले डालें। फ़ाइन इकसाम में आधी बोरी सोना यूरिया पनीरी की मुंतकली से पहले, आधी बोरी सोना यूरिया पनीरी की मुंतकली के 25 दिन बाद और पौनी बोरी सोना यूरिया पनीरी मुंतकिल करने के 50 दिन बाद इस्तेमाल करें। मोटी इकसाम में पौनी बोरी सोना यूरिया पनीरी की मुंतकली से पहले और बकिया 1.5 बोरी सोना यूरिया पनीरी की मुंतकली के 30 या 35 दिन बाद डालें। हाइब्रिड इकसाम में 1/4 बोरी सोना यूरिया पनीरी की मुंतकली से पहले और बकिया सोना यूरिया 2 बराबर हिस्सों में पनीरी की मुंतकली के 3 और 6 हफ्ते बाद डालें। ख्याल रहे कि सोना यूरिया की दूसरी और तीसरी किस्त डालते वक्त खेत कीचड़ की हालत में हो और छट्टा करने के फ़ौरन बाद पानी लगा दें। काश्तकार भाइयों, धान की भरपूर पैदावार के लिए जिंक और बोरान का इस्तेमाल निहायत ज़रूरी है। बोरान के इस्तेमाल से दानों की तादाद और मूंजरों की भराई में बेहतरी से पैदावार में खातिर खा इजाफा होता है। लिहाजा 3 किलोग्राम सोना बोरान फी एकड़ पनीरी की मुंतकली के वक्त दूसरी खादों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। सोना जिंक के इस्तेमाल से धान की फसल की निशोनुमा बेहतर होती है, नीज शाखें और कोंपलें ज़्यादा बनती हैं और पौधा ज़्यादा झाड़ बनाता है। भरपूर पैदावार के लिए 7.5 किलोग्राम सोना जिंक फी एकड़ पनीरी की मुंतकली के 10 से 12 दिन बाद खड़े पानी में बजरिया छट्टा इस्तेमाल करें। धान की काश्त आम तौर पर बजरिया पनीरी की जाती है, लेकिन पानी की कमी और लाभों की अदम दस्तयाबी की वजह से धान की बजरिया बीज बराह रास्त काश्त मकबूल हो रही है, क्योंकि इस तरीके से न सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि पौधों की फी एकड़ तादाद भी पूरी रहती है। धान की बराह रास्त काश्त करने के लिए इन उमूर का खास ख्याल रखें। ज़मीन की तैयारी मई के दौरान खुश्क हल चलाकर करें और फिर ज़मीन को हमवार करके पानी लगाएं और वत्तर आने पर ज़मीन तैयार करें। मोटी इकसाम के लिए शरह बीज 10 से 12 किलोग्राम और फ़ाइन इकसाम के लिए 8 से 10 किलोग्राम फी एकड़ रखें। बराह रास्त काश्त बजरिया छट्टा या ड्रिल की जा सकती है। छट्टे की सूरत में बीज को फफूंदी कुछ जहर बिले पानी में 24 घंटे के लिए भिगो दें और वत्तर हालत में ज़मीन पर छट्टा करें। अगर काश्त ड्रिल के ज़रिए करनी हो तो खुश्क बीज को जहर लगाकर काश्त करें। इस तरीके में लाइनों का फासला 9 इंच और बीज की गहराई 1.5 इंच तक होनी चाहिए। बासमती और मोटी इकसाम के लिए 1.5 बोरी सोना DAP और 1 बोरी FFC SOP या पौनी बोरी FFC MOP फी एकड़ बुआई के वक्त ज़मीन में डालें। मोटी इकसाम में 2.5 बोरी सोना यूरिया 2 बराबर इकसात में काश्त के 25 से 30 दिन और 45 से 50 दिन बाद डालें। बासमती इकसाम को 2 बोरी सोना यूरिया 3 बराबर इकसात में काश्त के 25 से 30 दिन, 45 से 50 दिन और 65 से 70 दिन तक मुकम्मल करें। जिंक और बोरान की कमी की सूरत में सोना बोरान 3 किलोग्राम फी एकड़ बुआई के वक्त और सोना जिंक 7.5 किलोग्राम फी एकड़ बुआई के 18 से 20 दिन बाद डालें। बराह रास्त काश्त में फसल को पहला पानी बिजाई के 5 से 7 दिन के बाद लगाएं और उगाव के बाद 30 दिन तक तर वत्तर और फिर वत्तर का पानी लगाएं। नुकसानदेह कीड़ों के इंसदाद के लिए दानेदार जहर डालने के बाद 3 से 4 दिन तक खेत में पानी खड़ा रखें ताकि जहर अच्छी तरह असर कर जाए। लाभ मुंतकिल करने या बराह रास्त काश्त के बाद 1 माह के दौरान खेत का जड़ी बूटियों से पाक होना बहुत ज़रूरी है। धान की बराह रास्त काश्त की सूरत में खेत में पानी खड़ा ना होने की वजह से जड़ी बूटियों का उगाव ज़्यादा होता है, इसलिए काश्त से पहले दोहरी रावनी करें और वत्तर आने पर हल चलाएं। इससे काफ़ी हद तक जड़ी बूटियाँ तल्फ हो जाती हैं। जड़ी बूटियों के कीमियाई कंट्रोल के लिए FFC के ज़रिए माहिरीन के मशवरे से जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करें। धान की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान धान के तने की सुंडी, पत्ता लपेट सुंडी और सफ़ेद पुश्त वाले तेले से होता है। काश्तकार भाई अपनी फसल का हर दूसरे या तीसरे दिन मुआयना करें, क्योंकि ये कीड़े बड़ी तेज़ी से फैलते और नुकसान करते हैं। काश्तकार भाई कीड़ों की पेस्ट स्काउटिंग के बाद नुकसान की माशी हद को देखते हुए FFC हेल्पलाइन 0800 00 332 पर कॉल करके ज़राई माहिर के मशवरे से कीड़े मार जहरें इस्तेमाल करें।
धान की फसल पर बकायनी, पत्तों का जरासीमी झुलसाव, धान का भपका, तने की सड़ांठ और भूरे धब्बों वाली बीमारियां ज़्यादा हमलावर होती हैं। धान का भपका या ब्लास्ट जाहिर होने पर तजवीज़ करदा फफूंदी को जहर स्प्रे करें और 15 दिन के वक्फे से ये अमल दोहराएं। इसके अलावा गोब की हालत से लेकर सिट्टा निकलने के 2 हफ्ते बाद तक खेत को खुश्क ना होने दें। पत्तों के जरासीमी झुलसाव के हमले से बचने के लिए खेत में गोब से लेकर पकने तक वतर का पानी लगाएं और बीमारी जाहिर होने पर सिफारिश करदा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहिसाब 500 ग्राम फी एकड़ या कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड बहिसाब 250 ग्राम फी एकड़ स्प्रे करें। इसके अलावा बोर्डो मिक्सचर यानी नीला थोथा, अनबुझा चूना और पानी बहिसाब 1:1:100 का स्प्रे भी किया जा सकता है। फसल की कटाई के लिए वक्त की मुनासिबत बहुत ज़रूरी है। जब मूंजर के ऊपर वाले दाने रंग बदल चुके हों और नीचे वाले चंद दाने हरे भी हों तो फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। फसल ज़मीन के करीब से काटें। आजकल काश्तकार हजरात में मशीनी बर्दाश्त काफ़ी मकबूल हो रही है। नीज़ कबूटा मशीन के ज़रिए से धान की बर्दाश्त के काफ़ी हौसला अफजा नताइज हासिल हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ साफ़ सुथरी मूंजी और काबिल फ़रोख्त पराली का हुसूल मुमकिन है, बल्कि टूटे हुए दानों में कमी आती है और पैदावार में 5% तक इजाफा मुमकिन होता है। काश्तकार भाइयों, आप हमारी बताई गई सिफारिशात पर अमल करके धान की पैदावार में खातिर खा इजाफा कर सकते हैं।